Hello everyone. Thanks to BC sir, HY sir and HOD ma'am for giving this opportunity to present on the topic of sodium ion battery under the activity of discoveries of discovery. I am Ruvi Jain, Assistant Professor in Electronic and Communication Department. Why battery is important? We use battery in our daily life. It is essential component in electrical and electronic devices. They exist in cars, laptops, mobile phone and electronic gadgets, etc. This is the content of sodium ion battery. First, introduction. Second, construction of sodium ion battery. Then, manufacturing process of sodium ion battery. Then, difference between sodium ion and lithium ion battery. And then, various parameter. Then, features of sodium ion battery. Advantage, disadvantage, and ref. NIB stands for sodium ion battery and stands for sodium because symbol of sodium and I stands for ion and B stands for battery. The sodium ion battery has increased rapidly because of eco-friendliness and environmental friendliness of sodium compared to lithium. The sodium ion battery are a type of rechargeable battery that uses sodium ions as a charge carrier. Sodium ion battery is relatively young compared to other types of battery. The development of sodium ions battery took place side by side with that of the lithium ion battery in the 1970s and early 1980s. In 2011, research interest in sodium ion batteries has been revived because the battery grade salts of sodium are cheap and earth abundant, much more those of lithium. It is the sixth most abundant element in the earth crust. First successful attempt of sodium ion battery was undertaken in 1967 by Ford Motor Company, USA in the sodium sulfur battery. The sodium ion battery, the factors are price, abundance and size make sodium ion battery particularly interesting for large scale grid storage applications. Faradian global leader, it is the UK based company. This company claimed that in India 2021, India manufacturing setup and its capacity 1 gigawatt. It is designed by Williams Advanced Engineering UK. The sodium ion batteries is cheaper and safer than traditional lithium batteries. Because of in lithium batteries, the materials are used cobalt, copper. This is very expensive. So sodium ion battery is very cheaper. Sodium ion battery have a great promise for large scale storage of renewable energy sources. In solar panel, we can use sodium ion battery also. Phone could soon be powered by salt. The sodium ion battery is cheaper and lasts longer than cell currently used in gadgets. Sodium had more charge cycle than lithium ion. It is also charged faster and delivered energy more quickly. In the sodium ion, the raw material is 1,000 times more common than lithium and safer. Construction of sodium ion battery. Sodium ion battery construction principle is identical with that of lithium ion battery, but only difference being that the lithium compounds are swapped with sodium compounds. The sodium ion battery store energy in chemical bonds of its anode.
In lithium ion battery, the cathode terminal is connected connected lithium and anode is connected to graphite. But in sodium ion battery, the cathode is connected sodium and anode is connected hard carbon. वैसे ग्रेफाइट एंड हार्ड कार्बन दोनों ही कार्बन के फॉर्म है, बट हार्ड कार्बन इज बेस्ट सुटेबल विथ सोडियम एंड when the battery is charging, sodium ions de-intercalate and migrate towards the anode. Meanwhile, charge balancing electron pass from cathode through external circuit containing charger and into the anode. During discharge, the process reverse. Once the circuit is completed, electron pass back from the anode to the cathode and sodium ions travels back to the cathode. Sodium ion cells have reported with a voltage of 3.6 volt and able to maintain 115 ampere hour per kg after 50 cycles. In sodium ion battery, the hard carbon is clearly the most preferred anode due to its excellent combination of high capacity. Graphite and hard carbon both the form of carbon, but hard carbon more support the sodium ion and its combination to make the better performance. And different electrolyte are used for sodium ion batteries such as ethylene carbonate, diethyl carbonate, dimethyl carbonate, etc. Manufacturing process of sodium ion battery. The manufacturing process is divided into 3 steps. First, electrodes coating. Second, calendering. And third one is cell assembly. Explain first process of sodium ion battery is electrodes coating. इस प्रोसेस में सबसे पहले हम मेटल इलेक्ट्रोड फॉइल लेंगे और उस मेटल इलेक्ट्रोड फॉइल को हम मशीन के ऊपर माउंट कर देंगे, जो कि अनवाइंड होती है। और इस अनवाइंडर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक इसकी जो विड्थ होती है वो 0.5 मीटर्स की होती है। एंड इसमें जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं, जो हमारे पास एल्यूमिनियम मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पर एज अ करंट डायरेक्टर की तरह बिहेव करता है। इसमें जो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो हम पॉजिटिव साइड में लेते हैं मैग्नीशियम एंड नेगेटिव साइड में हम लेते हैं यहाँ पर हार्ड कार्बन मटेरियल। दोनों ही हमारे एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद हम इस पूरे मटेरियल को 2 साइडेड कोटर में सेकेंड स्टेज में भेजते हैं। 2 साइडेड कोटर में हम एक्टिव मटेरियल को कंडक्टिव वाइंडर के साथ डालते हैं सॉल्वेंट के साथ, तो हमको एक आउटपुट में स्लरी फॉर्म देता है। इस स्लरी फॉर्म को मेटल के ऊपर लगाते हैं और ये सारे पैरामीटर्स हमारे डिपेंड करते हैं थिकनेस पर। थिकनेस ही हमारे यहाँ पर डिफाइन करती है कि बैटरी में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर थिकनेस हमारे पास प्रॉपर वे में नहीं हुई तो बैटरीज में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी होते हैं। फिर हम यहाँ पर ही अपनी थिकनेस को एक प्रॉपर फाइन एज में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मीन्स हम इसको कट करते हैं प्रॉपर फाइन एज में। और यही थिकनेस हमारी क्या कर सकते हैं, हम इस थिकनेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें थर्ड स्टेज होती है ड्रायर। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इवोपरेट करते हैं। एक्चुअली ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो बेकिंग प्रोसेस होती है। हमारे पास हीट, हम इसको हीट करते हैं और हमारे पास क्या होता है, इवोपरेट होता है और हमारा स्लरी फॉर्म इससे क्या हो जाता है, निकल जाता है। और हमको एक क्या देता है, एक इलेक्ट्रोड मेटल कोट की, जैसे हमने मेटल कोटेड फॉइल लिया था वैसे हमको एक इलेक्ट्रोड मेटल कॉइल हमको मिल जाता है। देन फोर्थ स्टेज में हम इसको वाइंडर में भेजते हैं और यहाँ पर ये बाइंड हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस होती है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग में अब पूरा जो मटेरियल हमारे पास आया है अनवाइंड होता है और अनवाइंड के बाद हम इसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है इसमें रोल प्रेस में हम अपना जो भी हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोफॉइल है उसको हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस
इसीलिए करते हैं ताकि जितने भी एयर बबल्स या पोर्स जो भी हैं आगे दिक्कत ना हो, तो हम यहाँ पर उस पूरे रोल प्रोसेस के थ्रू उसको कंप्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे थिकनेस इंस्पेक्शन। थिकनेस इंस्पेक्शन हम इसलिए करते हैं, जो भी हमको हम इसको सिलेंड्रिकल शेप में देना चाहते हैं या फिर हम पाउच फॉर्म में हम इसका शेप बनाना चाहते हैं बैटरी का, तो यहाँ पर ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रॉपर थिकनेस इंस्पेक्शन करते हैं, इसके थ्रू हम अपनी थिकनेस को डिसाइड कर लेते हैं। देन फोर्थ स्टेज में होता है स्लिटर्स। स्लिटर्स में हम एक डिजायर्ड लेंथ की नैरो स्ट्रिप्स को कट करते हैं। हम इस नैरो स्ट्रिप को केयरफुली वे में हमको कट करना होता है। फाइनली अगर हम इसको नहीं कट करेंगे प्रॉपर वे में तो ये आगे हमको प्रॉब्लम दे सकता है। देन उसके बाद हमारा पूरा जाता है बाइंडर में और यहाँ पर ये बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है लास्ट, सेल असेंबली। अभी हम पूरे प्रोसेस में हम सिलेंड्रिकल सेल को डिजाइन कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल बैटरी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर सेल असेंबली में हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, सेपरेटर होता है और मैंड्रोल होता है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव जो प्लेट रहती है उसके पास में लगा हुआ रहता है मैंड्रोल रोल, एक रोलर की तरह बिहेव करता है। और नेगेटिव प्लेट के पास में भी एक मैंड्रोल लगा हुआ रहता है। हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को आइसोलेट करने के लिए हम बीच में लगाते हैं यहाँ पर सेपरेटर। अगर हम सेपरेटर का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो सकते हैं बैटरी में। इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आइसोलेट करने के लिए सेपरेटर्स का यूज करते हैं। फिर हमारी जो भी प्रोसेस हुई है हम उस प्रोसेस को भेजते हैं रोलर कटर में। यहाँ पर रोलर कटर के बाद, रोलर कटर इसी जगह हम यूज कर सकते हैं जो भी हमको डिवाइस लगाना है, सेफ्टी डिवाइस लगाना है या कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस यहाँ पर हमको यूज करना है, सेपरेटर हमको यूज करना है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं रोलर कटर के बाद। उसके बाद होती है कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग प्रोसेस में हम जितना भी हमारे पास मटेरियल उसको आया है, हम एक बेसल्स के फॉर्म में, कैनिंग मतलब एक टाइप का बेसल्स होता है, उसके हम उसको इसके अंदर रख देंगे। देन हम इसकी बात करेंगे इसकी कैप वाइंडिंग। कैप वाइंडिंग में जो कैप वेल्डिंग प्रोसेस होती है, कैप वेल्डिंग प्रोसेस में दो टाइप से कर सकते हैं। पहली प्रोसेस होती है लेजर और दूसरी प्रोसेस होती है अल्ट्रासोनिक। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक साइड से हम ओपन छोड़ देते हैं ताकि हम इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर सकें। इलेक्ट्रोलाइट को हम फिल करने के बाद यहाँ पर हम उसको करते हैं शील्ड वेल्डिंग। शील्ड वेल्डिंग में हमारी पूरी साइकिल को हम चेक करते हैं, जो हमने अभी तक पूरी प्रोसेस करी उस साइकिल को हम पूरा चेक करते हैं। देन हम उसका इंस्पेक्शन करने के बाद फाइनली हम उसको पैकिंग टू फॉर्मेशन भेजते हैं। अगर हमने पैकिंग टू फॉर्मेशन से पहले अगर हमने इंस्पेक्शन नहीं किया, कहीं हमारा कोई फाइन एज मतलब कोई थिकनेस ज़्यादा बड़ी तो नहीं है जितना हमने जो फॉर्म हम बनाने वाले, शेप बनाने वाले उस फॉर्म में है, अदरवाइज हमारे पास शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो सकते हैं बैटरी में। उसके बाद ही हम पैकिंग टू फॉर्मेशन के लिए भेजते हैं। Difference between sodium ion and lithium ion battery. The first parameter is cost. Lithium ion battery हाई होती है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन बैटरी। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। रीजन इज दैट बिकॉज इन lithium ion battery the material are used cobalt and copper. This is very expensive. In sodium ion battery the material are used magnesium, aluminium, sodium, and these materials are easily available in the earth crust. That's why the sodium ion battery cost is very low as compared to lithium ion. Next parameter होता है energy density. lithium ion battery की energy density high and sodium ion में दो ऑप्शन मिलते हैं, moderate and high. Safety, it is the most important parameter of sodium ion battery. लिथियम आयन बैटरी में हमको BSM की रिक्वायरमेंट रहती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बट इन सोडियम आयन बैटरी नो BMS इज रिक्वायर्ड। मटेरियल्स आने वाले टाइम पर लिथियम आयन के मटेरियल्स स्कैर्स होते जा रहे हैं, इसीलिए हमको सोडियम आयन बैटरी को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ये अर्थ सिक्स्थ मोस्ट अबेंडेंट मटेरियल हमको अवेलेबल है। नेक्स्ट, साइक्लिंग स्टेबिलिटी
लिथियम आयन बैटरी की साइक्लिंग स्टेबिलिटी हाई एंड सिमिलर सोडियम आयन की बैटरी की भी हाई होती है। एफिशिएंसी दोनों की सेम होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सोडियम आयन बैटरी में हम ग्रेटर देन हाई ले सकते हैं, 90% से ज्यादा भी हो सकती है। टेम्परेचर रेंज -25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री होता है, लेकिन सोडियम आयन बैटरी में हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक बात कर सकते हैं। ये हायर टेम्परेचर भी स्टेबल रहता है, बट लिथियम आयन बैटरी हायर टेम्परेचर में अनस्टेबल हो जाता है। रिमार्क्स, लिथियम आयन बैटरी का ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शंस होता है डिस्चार्ज स्टेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एंड सोडियम आयन बैटरी में इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमको इसमें 0 वोल्ट तक भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी को हम 2.5 वोल्ट से अगर ब्लो करते हैं तो ये हमारी बैटरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसको हम रिचार्जेबल कर सकते हैं सोडियम आयन बैटरी को, बट लिथियम आयन बैटरी इज नॉट अ रिचार्जेबल सेल। नेक्स्ट, comparison between lithium ion battery and sodium ion battery with various parameters like charging life, cost, discharge efficiency, specific energy, nominal volt, lower volt, charge rate and temperature range. चार्जिंग लाइफ जो होती है हमारी 1200 to 1600 साइकिल्स होती हैं सोडियम आयन बैटरी की, वही अगर लिथियम की देखें तो 2000 होती है। कॉस्ट की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी 30% चीपर देन लिथियम आयन बैटरी। डिस्चार्ज इफिशियंसी दोनों की सिमिलर होती है 90%। स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी की स्पेसिफिक एनर्जी 140 वाट आवर पर केजी और लिथियम आयन बैटरी की 120 वाट आवर पर केजी। नॉमिनल वोल्ट इसका सोडियम आयन का 3.7 वोल्ट होता है और लिथियम आयन का 3.2 वोल्ट। लोअर वोल्टेज की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी का लोअर वोल्टेज 0 वोल्ट तक भी हम इसको कर सकते हैं, बट लिथियम आयन बैटरी को इसका जो लोअर वोल्टेज होता है वो 2.5 वोल्ट होता है, उससे हम ब्लो नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट होता है चार्ज रेट, इसका 2C होता है 2C एंड इसका चार्ज रेट 1C है। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो ये लोअर टेम्परेचर से स्टार्ट होती है -40 टू 60 डिग्री एंड -20 टू 25 डिग्री। Features of sodium ion battery. First feature है zero energy transportation. This is the most important features of sodium ion battery. Sodium ion battery solve the problem of air transport. Sodium ion cells use safer and lower cost active material than lithium ion cells. Sodium ion batteries can be discharged to 0 volt and stored, but in lithium ion battery the temperature is below, the battery is damaged and not rechargeable. Second features sodium ion safety and stability. हम टाइम के साथ इसके टेम्परेचर को स्टेबल कर सकते हैं सोडियम आयन बैटरी में, बट इन लिथियम आयन बैटरी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये अनस्टेबल रीजन में पहुंच जाएगा। सोडियम आयन इसीलिए हमारे सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी को शो करता है। डायग्राम में शो भी है सोडियम आयन बैटरी में जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं वो स्टेबल है, बट लिथियम आयन बैटरी इज नॉट स्टेबल। थर्ड, सस्टेनेबिलिटी, फोर्थ, परफॉर्मेंस एंड फिफ्थ, कॉस्ट। सोडियम आयन बैटरी इज चीपर देन लिथियम। बेस्ट performance in sodium ion battery like energy density, cycle life, rate. Sodium ion is abundant, so sodium ion battery manufacturing facility may be established virtually anywhere. Cobalt free cell chemistry होती है. This is the features of sodium ion battery. Advantage of sodium ion battery. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Advantage, rechargeable sodium ion battery for energy storage, easy to recycle, low market price, capable working of room temperature and good efficiency. Disadvantage of sodium ion battery. First, large ionic cell which require more power to keep energy flowing. Second, it takes several days to charge in case you forget it to charge full. Third,
need high temperature for optimal work, low energy density. This is the advantage of sodium ion battery.